رات گہری تھی، وہ ڈنر کرنے بھی اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی اور کسی نے اسے کہا بھی نہیں تھا۔ اب سلمیٰ بیگم ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی جسے وہ کھانے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم کی گود میں منہ دیے نیم جان سی لیٹی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کے گواہ تھے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے دل و جاں بلکہ روح تک پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے یاسین کی تلاوت مکمل کی اور ذرا سا جھک کر اس کے ملیح مگر سوگوار چہرے پر پھونک ماری اور یاسین چوم کر عقیدت سے سر ٹیبل پر رکھ دی۔ شاید مومنہ اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امی، میں اس آدمی سے کس قدر شدید نفرت کرتی ہوں؟ مومنہ نے کہا تو ہمیشہ کی طرح سلمیٰ بیگم نے بے بسی کے احساس سے چور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں براؤن آنکھوں میں اس شخص کا ذکر کرتے دنیا جہان کی نفرت، حقارت و قہر سمٹ آیا تھا۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ملک تابش سراج سے کتنی نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر وہ مر بھی جائے تو یقین کریں امی میں جشن مناؤں۔ مومنہ نے آنکھیں موندے کہا، جیسے اس دل فریب نظارے کو بند آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کر رہی ہو۔ مومی، سلمیٰ بیگم روح تک کانپ اٹھی تھی، حقیقت سے جو واقف تھی جس سے ان کی بیٹی بالکل ناواقف تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا مگر آج وہ شاید 16 سال کی بڑھاس نکال دینا چاہتی تھی۔ بے شک وہ آپ کا بھتیجا ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ یہ بول کر میرا منہ بند مت کروانا کہ مجھ سے اتنا بڑا ہے ہوں، مگر میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں۔ امی کے سوچ ہیں آپ کی، بچپن سے لے کر آج تک آپ جانتی ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے میری شخصیت مسخ کر رکھ دی امی، میری نسوانیت کی دھجیاں اڑائیں، ہر بار میرے پندار کو روند ڈالا۔ امی مجھے نفرت ہے اس آدمی سے، اس کے نام سے، اس کی شکل سے۔ اس نے اتنی بار میرے کردار پر سوال اٹھائے کہ اب تو لگنے لگا ہے کہ میں واقعی ایک بدکردار لڑکی ہوں امی۔ مومنہ کا یہ کہنا تھا کہ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت ٹپ ٹپ برسے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر کے اپنے دل کی ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ اچھا سنیں نا امی، آپ ایسا کریں میری جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ میں اس جہنم سے آزاد ہو سکوں۔ مومی نے اطمینان سے اپنے ہر مسئلے کا حل بتایا۔ اور سنیں، میں اس ذلیل، بے حس، بد دماغ اور قابل نفرت شخص کی ہر ظلم و زیادتی کے بعد سالوں سے جو بات سوچتی آئی ہوں وہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی اس سراج مینشن سے ہزاروں کلومیٹر دور کرنا، بلکہ ایسا کرنا بیرون ملک کر دینا تاکہ اگلی زندگی میں دوبارہ کبھی مجھے اس منحوس سراج مینشن اور اس منحوس شخص کی شکل نہ دیکھنی پڑے، کبھی بھی نہیں۔ اور ہاں پتہ ہے، بعد میں آپ کو ہی مجھے ملنا آنا پڑے کرے گا، کیونکہ میں تو اس ذلت مینشن میں ایک قدم بھی نہیں رکھوں گی امی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی کریں گی نا آپ؟ مومنہ نے ذرا سا سر اٹھا کر ماں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سے ساون بھادوں برستے۔ سلمیٰ بیگم نے دھیمے سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تو جیسے ہر بوجھ سے آزاد ہو کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ پلٹ کر آنکھیں نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، کئی لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ محبت ہو تو بے حد ہو، نفرت ہو تو بے پایاں، کوئی بھی کام کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ ناشتے کی ٹیبل پر عام دنوں کی طرح غیر معمولی ہلچل سی تھی۔ مومنہ سلمیٰ بیگم کے پہلو میں اپنی پلیٹ پر مکمل جھکی ہوئی تھی، مبادا کہیں نگاہ سامنے اٹھے اور حلق تک کڑوا ہو کر سارا دن خراب نہ ہو جائے۔ تبھی داجی نے سربراہی کرسی پر بیٹھے گلا کھنکارا تھا۔ ان کے پہلو میں ہی رکھی کرسیوں پر تایا اور چچا جان برجمان تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کا چہیتا سنجیدگی سے بیٹھا، بڑی رغبت سے بریک فاسٹ سے انصاف کر رہا تھا۔ ابھی کافی دنوں کی سوچ بچار اور صلح مشورے کے بعد ہم بڑوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، داجی نے بلند و رعبدار آواز میں کہا تو سب کے ساتھ مومنہ نے بھی بلا ارادہ داجی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ملک تابش سراج کو اس کی امانت سونپ دی جائے، مطلب کہ اس کی منکوحہ ملک مومنہ سراج کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ یہ سن کر قریب بیٹھے
मलिक ताबिश सराज के लबों को एक मबहम सी फतहाना मुस्कुराहट ने छुआ था। बात थी कि फंदा जो मोमना के गले में लगा था या ज़मीन इसके सर पर उल्टाई गई थी, हमेशा की तरह इसकी रूह पर कोड़े बरसाए गए तो वो बलबला उठी। इसकी टांगों में होती वाजिया लर्जिश सलमा बेगम ने भी देखी थी। बेयकीनी की इंतहा से फटी फटी निगाहों से करीब बैठी माँ को देखा तो वो जानबूझकर निगाहें चुराकर सर झुका गई। वो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में तेज़ी से उठकर अपने कमरे में बंद हुई थी। सलमा बेगम का दिल दहल चुका था। अभी वो रात क्या बातें कर रही थी और अब ये इतना बड़ा इंकशाफ क्या रंग लाएगी इसकी इतनी नफरत। बच्ची शर्मा गई, शायद दाजी मुस्कुराए थे। मलिक ताबिश सराज ने एक निगाह इस बंद दरवाजे की जानिब देखा। इरादा चट्टानों सा मजबूत था। हाँ, वो मना लेगा इसे, पर क्या ये सब इतना आसान था? लाहौर के कमर्शियल एरिया पर बनी एक 50 मंजिला इमारत का मालिक मलिक शजात क्रोफर्ड से बिल्डिंग के 5th फ्लोर में बने अपने शानदार तरीन ऑफिस में दाखिल हुआ था, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनकी कंपनी का टेंडर हासिल करने को बिजनेस की दुनिया बड़े बड़े नाम शामिल थे। मगर मलिक शजात ने सबका फारिग कर दिया था, ये बोल करके वो ये टेंडर किसी को दे चुके हैं। जबकि मलिक शुजात ने बस नवीद एहसन को हाथ से बैठे रहने का इशारा किया था। सबके अरमानों पर पानी पड़ा था। तभी कुछ गुस्से में तो कुछ लोग झंझलाते हुए वहां से निकले थे। अब इस ऑफिस में मलिक शुजात और नवीद एहसन आमने सामने बैठे थे, जबकि मलिक शुजात का इकलौता खूबरू बेटा मलक अरशमान खिड़की में दोनों हाथ पीछे अपनी कमर पर बांधे शीशे के इस पार जाने क्या तलाश कर रहा था। तो नवीद एहसन, टेंडर चाहिए तुम्हें? मलिक शुजात ने इंतहाई पुरस्कार तरीके से पूछा तो नवीद एहसन चौंका। जी जी बिल्कुल चाहिए, नवीद ने खुश होकर कहा था। ना सिर्फ ये टेंडर तुम्हें मिलेगा, बल्कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी से वो डील साइन करेगी जिसको साइन करने का ख्वाब तुम सालों साल से देखते आए हो। अब सवाल ये है कि हम तुम्हारे लिए इतना क्यों करें? जाहिर सी बात है, कोई गरज कोई रिश्ता हो तो ही कोई किसी के लिए कुछ करता है ना। तो ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा, क्या ख्याल है? मलिक शुजात ने सुकून से कहा, जबकि मलिक शुजात की हर बात पर नवीद एहसन की आंखों में चमक का इजाफा ही हुआ था, लेकिन इनकी आखिरी बात पर नवीद हैरत से गंग जरूर हुए थे। मेरी कौन सी बेटी? मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, वो गड़बड़ाए, जबकि सामने वाला कीमती सिगार पीते गहरा मुस्कुराया कि नवीद एहसन की हिस्ट्री जियोग्राफी जो जानता था। अरे जाने भी तो नवीद एहसन, तुम पैदा करके भूल गए। तुम्हारी बीवी सलमा बेगम और इसकी बेटी मलिक मोमना। नवीद एहसन, याददाश्त वापस आई कि नहीं? तुम गामिर हो जो भूल गए, मगर मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने को तमाम डिटेल्स निकलवाई हैं इस बच्ची की। दरअसल टू द पॉइंट बात करता हूँ। इत्तेफाक से कॉलेज जाते जाते देखा अरशमान ने इसे और मोहब्बत करने लगा। इसे बात करने की कोशिश की, मगर बच्ची बाहया है, बात तक नहीं की इससे। मगर अब इस पगले ने इसे हासिल करना अपनी जिद बना लिया है। बच्ची का अता पता निकलवाया तो मालूम पड़ा कि वो तुम्हारी बच्ची है। अब जाओ नवीद एहसन, टेंडर तो आज ही तुम्हारे नाम हुआ, लेकिन अगर चाहते 1-2 माह में ये डील भी साइन हो जाए तो बच्ची को इसकी माँ से छीन कर लाओ, किसी कीमत पर, किसी भी तरीके से। मलिक शुजात ने हतमा फैसला सुनाया था, पीछे खिड़की पर खड़े इस मगरूर से बंदे को लबों पर एक मखसूस नाम सुनकर गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। ओ, तो बेटी हुई थी सलमा की? नवीद एहसन खोया खोया सा बोला। वो शख्स जिसने दुनिया भर की दौलत कमाई थी, मगर अब भी और से और की तलाश में था, मगर अफसोस सुकून और औलाद जैसी दौलत से महरूम था। ओके, जो आपने बोल दिया समझो हो गया। अब तो दुनिया की कोई ताकत मेरी बच्ची को मुझसे मिलने से नहीं रोक पाएगी, ना ही कोई मुझे इसे अपने पास लाने से रोक पाएगा। बाप हूँ इसका, कौन रोकेगा मुझे? मलिक नवीद एहसन ने कहा तो सामने मौजूद दोनों बाप बेटा फतहाना सा मुस्कुराए। नवीद एहसन इनसे मसफा करने को आगे बढ़ा। अरे यार, होने वाले समधी हो, गले लगो। मलिक शुजात ने नवीद एहसन को पंप किया, वो भी खुशी खुशी उनके सीने से लगकर
ज़हन में मुख्तलिफ ताने-बाने भूनते वहाँ से निकला था। 4 साल बाद श्याम ने स्वराज मैंशन कदम रखा था। सब बड़े मेन पोर्शन के लाउंज में ही मौजूद थे। सबसे मिला। माँ ने सीने में भूंजा तो बरसों बाद रूह को करार आया था। और इधर शाजिया बेगम, कौन से गिले, किससे शिकवे, अब बेटे के सीने से लगी छम छम नीर बरसा रही थी। सबसे मिलकर पास बैठ गया। मतलाशी निगाहें किसी को ढूंढने को चारों जानिब उठी मगर नाकाम लौटी। ना वो दुश्मन जहाँ नजर आ रही थी न मोमी, बल्कि मोमी की रुखसती की बातें और तैयारी की शुरुआत के प्लान जोरों शोर से जारी थे। श्याम ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया था। तभी कुछ सोचकर बड़ों की बातें सुनने लगा। चाय भी मुलाजमा ने ही आकर सर्व की। बड़े काफी खुश थे मगर इधर मलिक ताबिश सराज था जो बेचैनी से पहलू बदल रहा था। किन अखियों से बार बार हसरत भरी निगाह अंदर के दाखिली दरवाजे की जानिब डाल लेता। वो सुबह से अपने कमरे में बंद थे। लंच भी सलमा बेगम इसके पास लेकर गई थी। दिल तो चाह रहा था हर लिहाज बलाए ताक रखते हुए इसे एक मर्तबा देख ही आए कि वो इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर रही है। इसकी इस कदर खामोशी हैरत अंगेज, नाकाबिले हजम और नाकाबिले यकीन बल्कि तशवीशनाक थी। कभी मलिक ताबिश जानता था जब भी इस पर इस हकीकत का तदराक होगा वो बहुत ज़्यादा शोर मचाएगी, चीखेगी, चलाएगी, एहतजाज करेगी, मगर इसे मना लिया जाएगा। उल्टी पड़ गई सब तकदीरों के मुतरादिफ। सब इसकी सोच के बरक्स हुआ था। क्या ये सब बर्दाश्त करना इसके लिए इतना ही आसान ही कि वो खामोश होकर अपने कमरे में गोशा नशीन है, या ये खामोशी किसी बहुत बड़े, बहुत भयानक तूफान की आमद का पेश खेमा है। वो सोच सोचकर पागल हो रहा था। तभी बेचैनी से पहलू बदल रहा था। कुछ वो अपने तरीके से रौब जमाकर जोर जबरदस्ती से जबरन मना ही लेगा। मगर ये क्या? श्याम ने गला खनकारा। दादी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब अगर आप लोग रुखसती की बात कर ही रहे हैं और अब जब कि मैं भी वक़्त पर आ गया हूँ तो मैं भी रुखसती चाहता हूँ। इसने निगाहें झुकाए बल्कि शाजिया बेगम से निगाहें चुरा गए। दादी के सामने अपना मदा बयान किया। वो गहरा मुस्कुराए जबकि बाकी सब और ताबिश ने बुरी तरह चौंकर इसे बगौर देखा था। अरे सांस तो लो, थोड़ा आराम तो कर लो, फिर सुनते हैं तुम्हारी फरियाद भी। दादी ने कुछ इस अंदाज से कहा कि एक मर्तबा तो श्याम भी चटपट आया था। तभी बैग लेकर खड़ा हुआ। मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा, वो कहते बैग घसीटता अपने पोर्शन की जानिब आ गया। गुजरते वक़्त की गर्दिश ने इसे मज़ीद ताकतवर कदमी रंगत में मर्दाना वजाहत का शहकार बनाया था। बेचैन खुशफहम निगाहें अपने पोर्शन में भी एक पल वाले क्यूट से चेहरे की मतलाशी थी, मगर वो नहीं जानता था कि इसके आने का सुनकर वो अपने पोर्शन में शिफ्ट होकर अपने रूम में नज़र बंद हो चुकी है। दुनिया की महफिलों से इकता गया हो यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मोमना सुस्ते चेहरे और पथराई हुई निगाहें लिए जो किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। बेड पर घुटने फोल्ड किए, घुटनों के गिर्द बाजू लिपेटे बैठी थी। इतनी बड़ी हकीकत माँ ने छुपाई थी। क्यों? आखिर क्यों? फिर इस क्यों का जवाब दिमाग खुद ही देता चला गया। माँ भी तो मजबूर है, भाइयों के टुकड़ों पर पलने वाली। इसकी माँ और वो खुद इनका एहसान कैसे चुका सकते थे? शायद ऐसे। माँ मजबूर थी। बाप और भाइयों के आगे कैसे एहसान फरामोशी करती? तो बेटी ही कुर्बान कर दी। वो जानती थी, अच्छी तरह जानती थी, इसके एहतजाज का, चीखने चलाने का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला था किसी को। माँ को एहसान फरामोश कैसे बना सकती थी? कैसे इनकी कुर्बानी ज़ाया जाने देती? यकीनन अम्मी ने इनके एहसान का बदला ऐसे चुकाया, इस जंगली वहशी के सामने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर। जीने की तमन्ना ही अंदर कहीं मरने लगी थी। अपना आप बहुत हल्का और अपनी हंसी इंतहाई बेदिक्कत लगने लगी थी। अपनी जगह से एक ट्रांस की कैफियत में उठी थी। आईने के सामने खड़ी हुई थी। बचपन से सजने संवरने का कितना शौक था, मगर इस आदमी की नहुसत ऐसी पड़ी थी। जिंदगी भर के सजना संवरना भूल ही गई थी और सादगी को ही अपनी शख्सियत का आईनादार बना लिया था। लेकिन अब अपना ही चेहरा मसक शुदा लगा था।
تو کراہیت کا احساس ہوا تھا۔ یہ چہرہ، یہ شخصیت جس نے مسخ ڈالی تھی، اب کیا مزید ساری زندگی اسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننا تھا؟ ایسے ہی گٹ گٹ کر زندگی گزارنی تھی۔ اس کے دل سے جیسے ہر خواہش مر چکی تھی، ہر ارمان مٹ چکا تھا، جینے کی تمنا پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، نہ ہی فرق پڑتا ہے کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو آزمانے سے، کسی کے آزمانے سے، کسی کو یاد رکھنے سے، کسی کو بھول جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو چھوڑ دینے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، نہ شمع کو جلانے سے، نہ شمع کو بجھانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے پھنسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کی نارسائی سے، کسی کی پارسائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ انتہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے، نہ تو اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ واقعی نہ اس سے اب دنیا کی کسی بھی چیز فرق پڑتا تھا، نہ ہی ڈر لگتا تھا۔ جب انسان کے دل و دماغ سے جینے کی تمنا ختم ہو جائے تو جسم اور روح دونوں نڈال ہو جاتے ہیں، اور میری ملک مومنہ سراج کے ساتھ ہوا تھا یا ہو رہا تھا۔ تب بھی وہ بے تحاشا نڈال ہوتے ہوئے کٹی پتنگ کی طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر دبیز کارپٹ پر گرتی چلے گئی تھی۔ سب رات کو ڈنر کے لیے ڈائننگ ہال میں موجود تھے، سوائے عرفہ جو کہ طبیعت کی خرابی کا بول کر اپنے روم میں تھی، اور مومی کے۔ کسی کی بھی جرات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ سلمیٰ بیگم کا بھی حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مومی کو چھیڑتی، سو اسے ڈنر کے لیے بلانے نہیں گئی تھی۔ اور اس معاملے میں تو ملک تابش سراج بھی اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا کہ بقول تابش کے ہزاروں بار عرفہ اور مومی کو باور کرایا گیا تھا کہ وہ جب تک اپنے اپنے رومز میں ہے تب تک عافیت میں ہے، مگر دو جانیں تھیں جو تقریباً سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اب اپنے ہی بولے کانٹوں سے ہاتھ اور وجود زخمی ہو رہا تھا تو بلبلا رہے تھے، اور یہی شغل جب خود فرما رہے تھے تب جانے کیوں پتھر کے بن چکے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے خاموشی سے اپنا اور مومی کا کھانا ٹرے میں لگایا اور اس کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ ملک تابش سراج جو اب پوری طرح تاشو بن جانا چاہتا تھا، مومی کا تاشو، چور نگاہوں سے سلمیٰ بیگم کے تعاقب میں نظریں اس کمرے تک اٹھیں، مگر ٹرے چھناکے سے زمین بوس ہونے کی اور سلمیٰ بیگم کی دل خراش چیخیں سن کر سب بے تحاشا چونکے تھے، اور وہ جس کی چھٹی حس پہلے ہی کسی حادثے کے ہونے کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی، ہر لحاظ بالائے طاق رکھتا اس کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ اندر آیا تو سلمیٰ بیگم اس کا ڈھلکا سا سر اپنی گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مومی میری بچی، آنکھیں کھولو، اپنی مجبور ماں کی غم کی داستان سن لو، پھر ناراض ہو کر جدھر مرضی چلے جانا۔ سلمیٰ بیگم کی آہیں تھی کہ کوڑے تھے جو تاشو کی روح پر برسے تھے۔ مونا 8 سال بعد بے حد بے چین ہو کر اسے ایسے پکارا تھا، مگر وہ اب ان کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ تبھی جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، اور ملک تابش سراج کو یوں لگا کہ اس کے جسم سے بھی جان نکل جائے گی۔ سب گھر والے بے حد گھبرا چکے تھے۔ تابش نے اسے بازوؤں میں بھرا اور باہر کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا، اور تشویشناک حد تک ان کی باڈی بالکل بھی رسپونڈ نہیں کر رہی ہے۔ شاید ان کے دل و دماغ میں جینے کی کوئی امنگ، کوئی خواہش نہیں ہے۔ تبھی ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی میڈیسن ان پر اثر نہیں کر رہی ہے، اور ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے جب پیشنٹ اپنی لائف سے اس قدر بیزار اور مایوس ہو چکا ہو کہ اپنی زندگی سے زیادہ انہیں اپنی موت کو خواہش ہو۔ اور آئی ایم سوری ٹو سے آپ کی پیشنٹ کے ساتھ یہی پرابلم ہے۔ اب یا تو ان کی پرابلم حل کریں یا انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر سبین نے ان سب پر جیسے بجلی گرائی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک زخمی سی نگاہ اپنے سامنے کھڑے اپنی بیٹی کے مجرم کی جانب دیکھا، جس نے ان کی بیٹی کے دل و دماغ سے جینے کی امنگ ہی نوچ کر پھینک دی تھی۔
सलमा बेगम माही बे आप की तरह तड़पी थी। जिंदगी के हर कदम पर अपने नातवा कंधों पर मौजूद एहसानात का बोझ उठाया। अपनी लाडली इकलौती बेटी को खून के आंसू रोते देखा था, मगर अब बस हो चुकी थी इनकी भी और मम्मी की भी। अब वो अपनी बच्ची को लेकर एक पल का भी समझौता नहीं करने वाली थी, कभी भी नहीं। डॉक्टर को हाथ से इशारा किया था और एक निगाह दादी की जानिब देकर सबको देखा, और डॉक्टर के साथ आईसीयू के अंदर गई थी, जहां वो इस जालिमों बेहिस दुनिया से बेगाना कहीं और की ही तैयारियों में थी। तभी चेहरे पर 8 साल पहले वाली आसूदगी छाई थी। सलमा बेगम करीब आकर इस पर झुकी थी, इसके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा था। मम्मी मेरी जान, सलमा ने पुकारा तो इसकी सांसें बेतरतीब सी हुईं। नीम गनूदगी में इसने अपनी जरा सी आंखें खोलकर माँ को शायद आखिरी बार देखना चाहा। मम्मी मेरी जान, देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें खो नहीं सकती। अब तुम्हारी अम्मी बहुत बहादुर बन जाएगी, किसी से नहीं डरेगी। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा दिल चाहे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगा। और सुनो, सबसे अहम बात, जल्दी से ठीक हो जाओ। वकील से भी तो मिलना है। मैं तुम्हारे ठीक होने तक खुला के पेपर बनवा कर रखूंगी और इसे साइन करवा लूंगी। फिर बस तुम्हें साइन करने होंगे। उठकर, ठीक है ना? सलमा बेगम ने हाथों में इसका चेहरा थामकर पर अज़म और पर यकीन लहजे में कहा था। इन बातों से मौमी की निगाहों में जिंदगी की रमक अब साफ दिखाई दे रही थी, जबकि पूरे खानदान के साथ आईसीयू के दरवाजे पर खड़े मलिक ताबिश सराज के सर पर एक मर्तबा फिर आसमान गिरा था, या पैरों तले से जमीन खींच ली गई थी, इसे कुछ पता न चला। वो आंधी तूफान बना सराज मैंशन आया था। सुर्ख लहू छलकाती आंखों से यूं महसूस होता था कि अभी लहू टपकेगा। अरफा, जो कि जब मम्मी को लेकर गए तब सो रही थी, बाद में उठी तो घर में किसी को मौजूद नहीं पाया। मुलाजमा से पूछा तो मम्मी का पता चला, और अब वो कब से किसी के इंतजार में बेचैन सी लाउंज के इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ताबिश को देखकर इसकी जानिब लपकी। भैया, कैसी है मम्मी? वो ठीक तो है ना? अरफा ने ताबिश का बाजू पकड़कर पूछा था, और ताबिश की बस हुई थी। गुड़िया, वो कपटियां सहलाता सोफे पर ढह गया था। अरफा तो घबरा ही गई। भाई, क्या हुआ? मम्मी ठीक तो है ना? आप बताते क्यों नहीं कुछ? गुड़िया, मैंने बहुत जुल्म किए ना तुम दोनों पर। तुम दोनों का जीना हराम कर दिया। जिंदगी तुम दोनों पर इस कदर तंग कर दी। क्या वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती? मुझसे रिश्ता जोड़ने से बेहतर इसे मौत को गले लगाना लग रहा है। गुड़िया, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने किए हर अमल का मदावा करूं? वो माथे पर हाथ रखे रो पड़ा था। अरफा खाली खाली निगाहों से इसे देखे गई। इधर आओ गुड़िया, पहले तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। ताबिश ने पागल होते अरफा के सामने हाथ जोड़े, जो इसने तड़प कर थाम लिए। ये क्या कह रहे हैं आप ताशु भैया? वो रहान सी हुई। अच्छा, आज बताओ, अपने दिल की बात बताओ। बस एक मर्तबा मुझे माफ़ कर दो, अब वही होगा जो तुम लोग चाहोगी। तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ, अपनी मर्जी बताओ। तुम श्याम के साथ रहना चाहती हो कि नहीं? ताबिश ने भीगी निगाहों से अरफा की जानिब देखा, जबकि इसके दोनों हाथ अरफा ने बेतहाशा रोते थाम रखे थे। इसने निगाहें झुकाकर आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया था। मलिक ताबिश सराज को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। ठीक है अरफा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वही होगा जो तुम दोनों चाहोगे। मगर अरफा, मैं इसे अब खो नहीं सकता। मनाना चाहता हूँ, वो मान जाएगी ना? वो मुझे माफ़ कर देगी ना? मैं अब इसके बगैर एक पल भी नहीं जीना चाहता। वो मान जाएगी। अरफा, मैंने अपने इन हाथों से अपनी ज़िंदगी एक बद्दुआ बना दी है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो अरफा, नहीं तो अब की बार तुम्हारा भाई टूट कर मर जाएगा। मलिक ताबिश सराज ने अपनी कपटियां सहलाई थी। वो झटके से उठकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन डॉक्टर्स ने काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया था। गुज़श्ता रात मोमी की हालत काफ़ी तशवीशनाक रही, मगर अब वो संभल रही थी, मगर बेहोश थी। पूरी तरह तसल्ली तब होनी थी जब वो मुकम्मल होश में आती। अब मौजूद थे। वो हॉस्पिटल की सर्द सी दीवार से टेक लगाए खड़ा था। 4 साल बाद इसे देख रहा था, जो सलमा बेगम के पास बैठी
मुसलसल इन्हें कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। श्याम ने निगाहें इसके मासूम चेहरे से हटाना ज़रूरी नहीं समझी थी और सितम ये कि इसकी इतनी महवियत के बावजूद इसने एक बार भी इसकी जानिब देखना गवारा नहीं किया था। ताबिश जाने क्यों मगर हॉस्पिटल से रात से गायब था, बाकी सब मौजूद थे और वो इमरान सिराज के साथ अभी अभी हॉस्पिटल आई थी और इतने अरसे बाद वो अपनी तमाम तर हस्ने सादगी समेत इसके सामने सीधा इसके दिल में ही उतर रही थी, मगर अपने महबूब की ये बेतवज्जही से बुरी तरह चुभ रही थी, तकलीफ दे रही थी। ए काश कि वो इसकी दस्तरस में आए तो वो अपने साहब हर बुरे रवैये की माफ़ी मांगकर इसे ये यकीन दिला पाए कि मलिक श्याम सराज ने इससे कितनी मोहब्बत की है। वह कंटीन तक जाती दिखाई दी थी। श्याम सबसे निगाहें बचाकर इसके पीछे गया था, लापरवाही से गुजरते अपने पीछे इतने करीब किसी की आहट महसूस करके वो बुरी तरह डरी थी और झटके से पीछे मुड़ी। वो ठटक कर रुका था। क्या हुआ? पैंट की पॉकेटों में हाथ डालकर सुकून से पूछा। वो बगैर जवाब दिए मुड़ गई थी। श्याम के दिल को कुछ हुआ। कैसी हो? फिर सवाल किया, मगर वो अब भी इससे मुखातब नहीं हुई थी। सच कहते हैं एक चुप सौ को हराती है, और अब इसकी ये चुप श्याम को बुरी तरह खुली थी। तभी वो जज्बर होकर फुल उकताकर बोला था, अरफा प्लीज़ मुझसे बात करो। वो तेज़ कदम उठाती इससे तंग आकर वापसी के लिए ही मुड़ गई और तकरीबन वहां से भाग ही गई थी। श्याम खाली खाली निगाहों से हैरत से खड़ा वहीं जमा रहा जहां वो इसे छोड़कर गई थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मोमना की तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी और अब वो होश में थी और सिर्फ सलमा बेगम से थोड़ी सी बातचीत की थी। दाजी और सब बड़े जिद करके इसके पास रुके हुए थे, मगर सलमा बेगम ने पहले अरफा को ताबिश के पास और फिर शाजिया को ज़बरदस्ती श्याम के साथ घर रवाना कर दिया था कि इनकी खुद की तबीयत कुछ सेट नहीं थी। अरफा काफ़ी बनाकर ताबिश के रूम की जानिब आ रही थी जब इसे इधर आते देखा और वो खिड़की की ओट में हो गई थी। शाजिया बेगम को इनके कमरे तक पहुंचाकर वो दाजी के हुक्म पर इनका पैगाम ताबिश तक इनकी तलाश में झिझकते हुए इस पोर्शन तक आया था और अब रूम से बाहर पहुंचाने खड़े होकर हल्की सी दस्तक दी थी। यस कम ऑन। अंदर से बोझल सी आवाज़ आई। श्याम अंदर दाखिल हुआ तो वो ब्लैक शलवार कमीज में सोफे पर सर ढकाए सोगवार सा बैठा था। श्याम कुछ पल तो कुछ बोल भी ना सका। कुछ काम था? ताबिश ने अपनी वहशतज़दा से सुरख आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। दादी आपको हॉस्पिटल आने का बोल रहे थे, आपने फ़ोन भी नहीं उठाया तो मुझसे बोल दिया। कहने को कैसी है वो? इसके लहजे में सदियों की शिकस्त और थकन थी। काफ़ी बेहतर, रात तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, इसीलिए दादी आपको बुला रहे थे, श्याम ने कहा और बोलकर जाने लगा। सुनो श्याम, अरफा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो बेहतर यही है कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। मलिक साहब ने श्याम के सर पर भी बम फोड़ा। वो हैरत व सदमे से ताबिश को देखे गया। इस तरह तो मम्मी भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे दे रहे हैं डिवोर्स? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं भी दे दूंगा, मगर आपके देने के बाद, श्याम ने इत्मीनान से कहा था। ताबिश ने इसे बगौर देखा। मैं मोना से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो दांत पीसकर बोला था। तो आपसे किस कमबख्त ने बोल दिया कि मैं अरफा से मोहब्बत नहीं करता? मैं भी अरफा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसने अब भी सुकून से ताबिश की आंखों में आंखें डालकर इसे कहा था। अरफा ऐसा नहीं चाहती, ताबिश ने आखिरी बार आजमाया। मोमी भी ऐसा नहीं चाहती, श्याम ने जताया। मैं इसे मना लूँगा, ताबिश का लहजा पर अज़म था। मैं भी अपनी बीवी को मना लूँगा, श्याम भी कौन सा कम था। एक आखिरी बार कोशिश करने का चांस मैं तुम्हें देता हूँ श्याम, जैसे मैं फुफ्फो से मांगने वाला हूँ। आखिरी मौका तो तुम्हें भी दिया। इसके बाद भी अगर अरफा का फैसला तुम्हारे खिलाफ हुआ तो मैं ज़रा लिहाज नहीं करूँगा अब की बार। ताबिश का लहजा बेलचक और सरद सा था।
میری بہن نے آپ کی زندگی برباد کی۔ اس گلٹ میں میں اپنوں سے اپنی بیوی سے بہت روڈلی بیہیو کرتا رہا، بہت دور ہوتا چلا گیا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ بدلہ مجھ سے لے۔ اب میری زندگی برباد کر کے میں عرفہ کو خود سے کبھی بھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ I'm sorry، نہ ہی آپ کی بات مانوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس سن سی ہوئی کھڑی تھی، جذبات سے بوجھل۔ اس کی یہ باتیں اسی کے بھائی کے سامنے کیا گیا۔ اتنی دیدہ دلیری سے یہ اظہار محبت سن کر بھی اس کا دل بالکل خاموش تھا، ہر جذبے سے عاری۔ اس کے دل کی دنیا تو وہ جو اجڑ چکی تھی، اور اب وہ اس پر اپنے ارمانوں کی سیج سجانا چاہتا تھا۔ کتنا پاگل تھا نا! ملک ارشمان نے اپنے پرآسائش کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رکھی تھی۔ قیمتی پرفیوم کمرے سے باہر فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے، اور یہ تماشا گھر کے سبھی ملازم کافی عرصے کے بعد دیکھ رہے تھے۔ ملک شجاعت اس تماشے کا علم ہونے پر اپنے آفس سے بھاگے آئے تھے۔ یقیناً کوئی من پسند چیز دسترس سے دور ہو گئی تھی لاڈلے بیٹے کی۔ تبھی وہ یوں مچل رہا تھا۔ ملک شجاعت تیزی سے اس کے روم کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ارے کیا ہوا ارشن، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ملک شجاعت نے بیٹے کا وحشی حلیہ اور خون رنگی آنکھیں ملاحظہ کی، اور ایک سرد آہ بھری۔ پاپا، آپ نے مومنہ کی ہر بات معلوم کروائی تو یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اس کے کزن سے؟ وہ دھاڑا اور دیوار سے LED اتار کر دھماکے سے زمین پر پٹکی۔ ملک شجاعت نے اسے دیکھا۔ اسی وجہ سے تو یہ بات چھپائی تھی، اس سے کہ اس کے پاگل پن سے ڈر کے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ملک شجاعت نے صوفے پر برجمان ہو کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ وہ بیمار تھی، میں ہاسپٹل گیا تھا اسے دیکھنے، تو انٹرنس پہ سسٹر نے اسے مسٹر تابش کے نیم سے پکارا، اور ڈسکرپشن میں اس کا یہی نام لکھا ہوا تھا، تو ملے مومنہ سے۔ ملک شجاعت نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ کہاں وہ اس کے ننیال والے چپکو لوگ، ایک سیکنڈ کو بھی جو اسے اکیلا چھوڑتے ہوں؟ موقع نہیں ملا مجھے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ مگر آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ ارے جانے بھی دو یار، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ نکاح ٹوٹ بھی سکتا ہے، خلا بھی ہو جاتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بس نوید احسن ایک مرتبہ اسے اس راج مینشن سے نکال لائے، پھر اگلے مراحل تو میں بڑی آسانی سے طے کر لوں گا۔ اپنے باپ کو جانتے نہیں ہو کیا؟ ملک شجاعت نے بات ہوا میں اڑائی۔ اچھی طرح سن لیں ڈیڈ، مجھے بس اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ مجھے وہ چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دیں، مگر مجھے وہ چاہیے۔ ارشمان کسی ضدی بچے کی طرح بول کر پیر پٹکتا وہاں سے نکلا تھا۔ ملک شجاعت کو اب جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ تابش براؤن ٹو پیس پہنے ہاسپٹل داخل ہوا تھا۔ اس قدر پروقار، پرکشش وجیہہ شخص کو ہر کوئی ایک مرتبہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لاپرواہی سے گزرتے سامنے سے آنے والی ہستی کو دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ سیرت، جس نے آج ہی ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی جوائن کی تھی، سسٹر کے ساتھ چلتی سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک کر اپنی جگہ رکی تھی۔ یوں پہلے دن ہی سامنا ہو جائے گا، کس نے سوچا تھا؟ وہ جان کر انجان بنتا، خوشبو کو جھونکا بنا پہلو سے شان بے نیازی سے گزر چکا تھا۔ اب سیرت کو یہ پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں سے کون ایڈمٹ تھا یہاں۔ سسٹر ان کو جانتی ہو جو ابھی گزرے یہاں سے؟ سیرت کے سوال پر سسٹر چونکی تھی۔ یہ ملک تابش سراج تھے اور ان کی وائف ایڈمٹ ہیں ادھر، سسٹر نے بتایا تو اب کی بار چونکنے کی اور دھچکا لگنے کی باری سیرت کی تھی۔ کتنی عجیب سی کیفیت ہوئی تھی اس کی وائف کا سن کر۔ کونے وارڈ میں ہے ان کی وائف؟ وہ ایک ٹرانس کے عالم میں پوچھے گئی۔ بڑی کڑی سزا دی تھی ملک تابش سراج نے اسے۔ اس کی بے وفائی کی سارے گھر والوں کے موبائل نمبرز چینج کر لیے تھے، حتیٰ کہ لینڈ لائن نمبرز بھی چینج کروا لیے گئے تھے۔ تبھی تو وہ ان 8 سال میں شازیہ بیگم تک سے کوئی رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ ابھی انہی کے روم میں تو جا رہے تھے ہم لوگ، ان کو چیک کر کے ڈسچارج دینا ہے آپ نے۔ سسٹر کی بات پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی تبھی سامنے سے شازیہ بیگم کا ہاتھ تھامے عرفہ آتی دکھائی دی تھی۔ کتنی تڑپ تھی اس کی نگاہ میں۔ شازیہ بیگم اور عرفہ بھی اسے وہاں دیکھ چکی تھی۔
और सुस्त रह गई थी। शाज़िया बेगम ने भी देखा अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहा जब इसने लपक कर इनका बाजू दबोचा था। अम्मी प्लीज़, दबी दबी सी सरगोशी में इल्तिजा थी, मगर शाज़िया बेगम ने इतने सालों बाद भी इसे एक नज़र उठाकर नहीं देखा था। हालांकि कलेजा मुंह को आ रहा था, मगर इसका हाथ बुरी तरह से झटकती वो अरफा का हाथ थामे आगे बढ़ी थी। सब रूम में मौजूद थे और मम्मी ने उठकर बैठी सलमा बेगम से हल्की आवाज में बातें कर रही थी। जब ताबिश रूम में दाखिल हुआ तो मम्मी के हाथ की गिरफ्त सलमा बेगम के हाथ पर सख्त हुई थी, मगर सलमा बेगम ने आंखों ही आंखों में इसे मजबूत रहने और मजबूत बनने का इशारा कर दिया था। तो वो पुरसकून सा हुई थी। अंदर दाखिल होकर ताबिश ने सलाम किया था। इसके चेहरे से निगाह हट नहीं पा रही थी, जो निगाहें झुकाए बैठी थी। ब्राउन मैगी नूडल्स बुरी तरह चांद चेहरे, कमर और बाजू पर फैले हुए थे। वो अब इसका हाल अहवाल पूछ रहे थे जब सिस्टर के साथ डॉक्टर अंदर दाखिल हुई थी और सीरत बीबी को डॉक्टर के रूम में देख सब सन्नाटे में आ गए थे। सीरत ने मलिक ताबिश सिराज की वाइफ को देखा तो हैरत से दंग हुई थी। मम्मी, वो कल की बच्ची? वो तो बहुत छोटी थी इससे। हाँ, अब मगर अपनी तमाम तर नज़ाकत, हुस्न और रनाइयों समेत इसके सामने थी। सीरत ने एक निगाह गलत इस शानदार, मजबूत और बुलंद किरदार के मालिक शख्स को देखा, जो वो था कि मोमी पे से निगाह हटाना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। सिस्टर के हाथों में डिस्चार्ज पेपर थे, वो लेकर सीरत ने चेक किए। आदत से मजबूर थी, तभी नर्वस ब्रेकडाउन और जहनी दबाव का पढ़कर एक तलख सी मुस्कुराहट ने लबों को छुआ था। किसी ने भी इसे मुंह लगाना ज़रूरी नहीं समझा था और सब अपनी बातों में ऐसे मसरूफ़ हो गए थे जैसे कोई गैर मामूली बात हुई ही ना हो। और सामने वाले की इंसल्ट हद तक और जिल्लत के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए था। मोमी भी हौनक सी बनी सीरत को सामने देख मुंह खोले बैठी थी। कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं? सीरत ने प्रोफेशनल से लहजे में मोमी से पूछा। काफ़ी बेहतर, इसने संजीदगी से जवाब दिया। किस चीज़ का स्ट्रेस बहुत लिया आपने? क्या मैं पूछ सकती हूँ सिस्टर? अपने डॉक्टर से कहें अपने काम से काम रखे और जो करने आई हैं वो करे, श्याम दांत पीसकर बोला था। वो जो अपनी आदत से मजबूर खफीफ सा तंज करने वाली थी। श्याम ने बीच में ही टोकर बोलती बंद की थी इसकी। सीरत साइन कर चुकी थी। मोमी सलमा बेगम का हाथ थामकर स्कार्फ अच्छी तरह लपेट कर इन सब के साथ वहां से निकलती चले गई थी। वो हसरत से इन्हें देखे गई। अब अगर इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारी होती तो मोमी की जगह वो होती और इसके भी यही चोंचले उठाए जा रहे होते। वो अब घर आए थे। मोमी अपने रूम में ही गई थी। सलमा बेगम इसके पास थी। इन्हें किसी ने नहीं छेड़ा था। अभी करीबन घंटे बाद ताबिश अपने कमरे में था जब अरफा बुलाने आई थी। ताशो भाई, पुप्पो बुला रही हैं दाजी के रूम में और वहाँ सब बड़े मौजूद हैं। अरफा की बात पर इनके दिल ने पसलियों से सर पीटना था। आहर वो वक़्त आन पहुँचा था तो आहर सामना तो करना ही था ना। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब गैर मामूली संजीदगी और खामोशी से बैठे थे। सदीका बेगम तो रो भी रही थी। सलमा बेगम इनसे हतमा बात कर चुकी थी और जो मोमी की हालत थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको उफ तक भी बोल सके। हालांकि दाजी में भी नहीं कि सालों साल से सलमा बेगम ने सब्र किया था, मगर अब सब्र का बंध टूट चुका था। जी फूफो, आपने बुलाया था? इसका लहजा धीमा और आंखें झुकी हुई थी। ये खुला के पेपर हैं ताबिश, मैंने फ़ोन करके वकील से बनवाए, साइन कर दो इन पर, सलमा बेगम ने संजीदगी से कहा था। ताबिश को यूं लगा जैसे रगों से जान खींची जा रही हो। कान साई साई करने लगे थे। वो सोफे पर बैठी थी। ताबिश घुटनों के बल झुका था और इनकी गोद में हाथ रखे थे। आई एम सॉरी फूफो, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। अंदाज अल्तजाइया था। सलमा को आग लगी। तभी ताबिश का गिरेबान पकड़ा था। तुम्हें अंदाज़ा है ताबिश, इन गुजरते सालों में तुमने क्या किया, क्या कर चुके हो तुमने मेरी बच्ची को इतनी जहनी अज़ियतें दी कि अब वो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती थी। मौत के मुंह से लौटी है और मैं अपनी इकलौती औलाद को हरगिज़ खोना नहीं चाहती। ताबिश, खुदारा इसे आज़ादी देकर इसकी ज़िंदगी बख्श दो। तलाक दो इसे अभी के अभी। सलमा बेगम ने आज इसका कोई लिहाज नहीं किया था, मगर फिर पत्थर से चश्मा फोड़ते देखा, यानी भतीजे की आंखों से आंसू निकलते देखे थे तो जुबान तलों से चिपक गई। इसे भी तो अपनी औलाद ही समझा था अब तक।
ताबिश ने अपने गिरे बांध से हाथ हटाकर इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे थे। बस एक आखिरी मौका फूफो, अच्छा सुने ना, मैं एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ आप लोगों से। अरफा ढीला ढाला ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर अब आईने के सामने खड़ी हाथों पर लोशन लगा रही थी, जब आईने में अचानक अपनी दाईं गाल पर एक छोटा सा पिंपल लश्कारे मारता दिखाई दिया तो इसका सदमे से बुरा हाल हो गया। उफ, सर पर हाथ मारा, क्या कुछ नहीं करती थी इस मनहूस पिंपल्स के खात्मे के लिए। हजारों टूने टोटके द्वियात कड़वे कसीले मौजून होम रेमेडीज भी ट्राई करके, मगर ये मनहूस कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। अब क्या करूं, इसने पैर पटके। एलोवेरा, अगर अब कुछ देर एलोवेरा की मसाज इस मनहूस पर की तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। पाँव में चप्पल पहनती खुद से ही बातें किए गई, मगर इस होलिये में बाहर कैसे निकलूं। फिर शाल उठाकर अपने गिर्द फैलाई और चुपके से बाहर निकल आई। लॉन में पहुंचकर इधर उधर देखा और एलोवेरा के गमले तक डरते हुए आई, क्योंकि इधर कदरे मलगंजा सा अंधेरा था। अभी इसका पीस तोड़ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से गला खनकारे जाने की आवाज पर वो उछल कर पीछे मुड़ी। सामने ही वो परशोक निगाहें अरफा पर जमाए हाथ अपने पीछे बांधे दिलचस्पी से इसे देख रहा था, जो गाल पर बहाने से हाथ रख कर वो पिंपल खुद से और इससे छुपा चुकी थी। श्याम इसकी इस मासूम हरकत पर दिल खोल कर मुस्कुराया। अरफा के माथे पर बल आए। क्या कर रही हो इधर, श्याम ने नरमी से पूछा। आपसे मतलब, इसका लहजा काफी सरल था। श्याम ने ठंडी आह भरी, मेरे सारे मतलब अब तुम ही से निकलते हैं मिसिस मलिक अरफा। श्याम ने कहते बहुत कुछ जताया था। वो बगैर एलोवेरा लिए वापसी को पड़तोलने लगी, जब श्याम इसकी राह में हायल हुआ था और बड़े भरपूर तरीके से शेर पढ़कर इसे छेड़ते। इसके पिंपल पर चोट की कि वो देख चुका है इसे। काश तेरे मुंह पर पिंपल के दाग होते, चाँद तो तुम ही हो, सितारे भी साथ होते। वो लब दांतों में दबाकर मुस्कुराया था और हस्बे मामूल वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। तभी इसके पहलू से निकलकर जाने लगी, मगर इतनी ही तेजी से श्याम ने इसकी कलाई थामी थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। वो बुरी तरह मचली। इसके मचलने से शाल सिड़क कर इन दोनों की कदम बोसी कर चुकी थी। अरफा बुखलाई थी, मगर वो एक झटके से खींचकर इसे सीने से लगा चुका था। कमर के गिर्द हाथ मजबूती से हमायल हुए। वो तड़पती रही, मगर इस आहनी गिरफ्त से निकलना इसके बस की बात नहीं थी। रात के 11 बजे लॉन में रात की रानी की महक चहार सो फैली थी। मलगंजे अंधेरे में बाहों में एक नर्मो नाजुक वजूद साल साल के तमाम सोए जज्बात अंगड़ाइयां लेकर बेदार हुए थे। दिल यूं था जैसे कानों में धड़क रहा हो। श्याम की निगाह इस पर से हट नहीं रही थी, बल्कि इसने अपना हाथ इसके जोड़े में फंसाकर एक झटके से काले स्या नागन की तरह बल खाते बाल भी कमर पर खोल दिए थे। झुक कर कंधे पर मोहब्बत की पहली महर साबित की तो अरफा की आंखों के आगे चांद तारे नाचे। आखिरी मर्तबा बोल रही हूँ, छोड़े मुझे। वो फिर गहराई। श्याम गहरा मुस्कुराया। अगर छोड़े मुझे आखिरी मर्तबा बोल रही हूँ तो आगे क्या बोलोगी, पकड़े मुझे। दिलचस्पी से कहते अब इसके माथे पर लब रखे थे। अरफा बुरी तरह मचलते पत्थर की हो गई थी जैसे, और अब हैरत तो सदमे से इसे देखे गई। श्याम ने मौके का फायदा उठाया था शायद, तभी एक हाथ इसके बालों में फंसाकर इसके हैरत से अध खुले गदाज लब अपने होठों की शिद्दत बड़ी गिरफ्त में लिए थे। अरफा ने इसके सीने पर हाथ रख कर इसे दूर धकेलने की कोशिश की थी, मगर इसका इस पर उल्टा असर ही हुआ था कि इसके अमल में शिद्दत ही आई थी। इतनी शिद्दत कि अरफा को लगा वो इसकी जान लेने के दर पे है। अरफा ने एक झटके से अपना आप छुड़ाया था। शाल भी उठाने की जहमत गवारा नहीं की थी। नम आंखें साफ करती अपने कमरे में बंद हुई थी और वो जैसे इसे छूकर पत्थर का बना गई थी। तभी वो काफी देर शाल उठाकर इधर ही खड़ा रहा, बल्कि अपने आप को कोसा था कि क्यों इसे खुद से दूर किया, क्यों अपनी जान और इसकी जान हिजर की सूली पर चढ़ाए रखी, क्यों इसे खुद से बदजन किया था। वो शाल लिए कुछ सोचकर अंदर आया था। सलमा बेगम अपना सामान पैक कर रही थी और मम्मी इनके पास बैठी इन्हें बगौर देख रही थी, बल्कि इनके साथ मिलकर इनका सामान भी पैक करवा रही थी। अम्मी, इतनी अचानक ये सब। वो बेजार होना नहीं चाहती थी, मगर मुंह बनाकर बोली।
सलमा बेगम मुस्कुराई। इतनी जल्दी कहाँ मम्मी, इतने अरसे से तो कोशिशों में मसरूफ थे। बार बार दरख्वास्तें दी, अब अगर हाजिरी मंजूर हो ही गई है तो हंसी खुशी हमें रुखसत करो मेरी बच्ची। सलमा बेगम ने इसके कर्ली बाल कान के पीछे ऐसे जो हर वक्त मुंह चूमने को बेताब रहते थे। अम्मी एक बात पूछूं? मम्मी पर सोच सी बोली। हाँ पूछो, सलमा बेगम मसरूफ से बोली। वो पेपर्स का क्या बना? वो खुला के पेपर्स का? मम्मी ने झिझकते पूछा तो सलमा बेगम ने इसके झुके सर को बगौर देखा। वो पेपर ये अलमारी में पड़े हैं। तुम हर तरह से आज़ाद हो, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जब चाहे आ जा सकती हो, जो मर्जी कर सकती हो। किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं तुम पर, ना कोई तुम्हें कुछ कहेगा। वादा है ये मेरा। बाकी रही इन पेपर्स की बात तो मैं कोई टेंशन लेगा अल्लाह ताला के घर नहीं जा सकती। सिर्फ ये 25 दिन इंतज़ार करना है तुम्हें, बस हमारे उम्रे से वापसी तक का इंतज़ार। अगर 26वें दिन तुम्हारे साइन इस पेपर पर मौजूद हुए तो इससे अगले दिन ताशु भी इस पर साइन कर देगा। ओके, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मोमी जी मैं समझ रही हूँ अम्मी। ठीक है, जैसा आप चाहें। इसे पता था अब इसकी माँ ही काफ़ी है इसके लिए। अब इसे किसी से डरने या किसी के भी रौब में आने की ज़रूरत नहीं है। मगर तशवीश तो इस बात की थी कि इतने दिन वो कैसे अकेले इसके साथ एक ही छत के नीचे गुजारेगी। मगर खैर, इसे अब क्या परवाह हो सकती थी? वो तो अपनी मर्जी की मालिक थी। अब मौमी के सवाल पर सलमा बेगम को हफ्ते पहले की रात का वो मंजर याद आया जब हफ्ते भर पहले ताबिश ने इससे एक मौका मांगा था।